हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे एनिमल फिजियोलॉजी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीएसआर नेट 11/2026 जुलाई के लिए। तो देखो, सीरम प्रोटीन इन इलेक्ट्रोफोरेसिस SPEP is an easy an expensive method of separating protein based on their net charge and shape. For a healthy person, albumin is the major protein component of serum and it represents the largest peak that lies closest to the positive reactol. Globulin की अगर बात करें, comprises a much smaller fraction of the total serum protein, but represents the primary focus of interpretation of serum protein. And in electrophoresis, 5 globulin categories represented: alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2, and gamma. प्लाज्मा प्रोटीन 90 से 92% ऑफ प्लाज्मा जो है वो क्या होता है, वाटर होता है। 7 से 8% प्रोटीन होती है। देखो, एल्ब्यूमिन जो होती है ना, वह 5.1 ग्राम मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर और कैरियर फॉर फ्री फैटी एसिड्स मेंटेनेंस बाय पीएच maintenance of pH buffering. Gamma globulin, humoral immunity, transthyretin, pre-albumin, transport of thyroid hormone and retinol, transferrin, iron transport करता है, सीरोप्लाज्मिन, कॉपर ट्रांसपोर्ट करता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है acute phase reactant inflammation, हेप्टोग्लोबिन, hemoglobin transport, हेमोपोएक्सिन, immune binding and transport. फिर बाद के अंदर आ जाता है एंजाइम इन प्लाज्मा और सीरम. सवेजे की डायग्नोस्टिक मार्कर इज देयर लेवल कैन इंडिकेट स्पेसिफिक ऑर्गन डैमेज एंड डिजीज स्टेट. अमाइलेज एंड लिपिड की अगर बात करें तो ये पेनक्रियाटिस और एसिड फॉस्फेटेज जो है प्रोस्टेट कैंसर, एल्कलाइन फॉस्फेटेज ALP, बोन एंड लिवर डिजीज, हाइपरथायरॉयडिज्म, क्रिएटिन काइनेज जो है रीसेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन. फिर देखें डेवलपमेंट ऑफ वेरियस formed element of the blood from bone marrow cells, hematopoietic stem cell, myeloid stem cell progenitor, मेगाकैरियोसाइट जो है मेगाकैरियोब्लास्ट क्या बनाता है, मेगाकैरियोसाइट. फिर ये बना लेती है प्लेटलेट. प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, रेटिनोग्लोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स. देखो, मायोब्लास्ट सेल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स, ये है हमारी ग्रेन्युलोसाइट. मोनोब्लास्ट जो कि बनाती है मोनोसाइट. लिम्फोइड स्टेम प्रोजेनेटर सेल, लिम्फोब्लास्ट, नेचुरल किलर सेल्स, लार्ज ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट, स्मॉल लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट. की कॉन्सेप्ट सेल्फ रिन्यूअल हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल कैन सेल्फ प्रोजेनेटर डिवाइड एंड डिफरेंशिएट into various blood cells. Outcome production of all found element of blood. So all blood cells are produced in bone marrow from hematopoietic stem cell through a series of progenitor cells, leading to the formation of erythrocyte, leukocyte, granulocyte, monocyte, lymphocyte, natural killer cells. And what is the cell charge changes in the red bone marrow cellularity? फिर देखिए, व्हाट इज द सेल्युलरिटी. रेड बोन मेरो सेल्युलरिटी it refers to proportion of hematopoietic blood forming tissue in the bone marrow. Total cellularity is highest in youth and decreases with age. Axial bone retain higher cellularity for longer. Long bone lose marrow cellularity earlier. देखो, वर्टिब्रल आ जाती है, फिर स्टर्नम आती है, रिब, टिबिया, फीमर. टिबिया आती है. देखो, एक्सियल बोन मेंटेन हायर cellularity for a longer period और long bone loses cellularity earlier with increasing ages. देखो, रेड बोन मेरो cellularity is highest in early and decreases with age. Vertebrae, सबसे ज्यादा वर्टिब्रल, sternum, rib, axial bone retain cellularity longer. Left femur, tibia, long bones loses cellularity. और by old age, most long bones have minimal red bone marrow, mostly replaced by fat.
By S20, the marrow is the in the cavity of the long bones, except for except for the upper humerus and femur hedges. Become inactive. देखो humerus upper और femur long bone की अगर बात करें after S20, marrow in the cavities become inactive or all marrow cellularity become decreases with age. देखो proximal near to the trunk cellularity increases of the distal or further from the trunk cellularity decreases. कि देखो after S20, red bone marrow in long bones become inactive except in upper humerus and femur proximal regions show increased cellularity while distal regions show decrease cellularity. देखो आरबीसी प्रोडक्शन साइट एम्ब्रियो जो है वन से थर्ड मंथ योग से फर्स्ट साइट फॉर आरबीसी प्रोडक्शन फिटस जो है लीवर स्प्लीन लिम्फ नोड लीवर हो गया स्प्लीन हो गया लिम्फ नोड हो गया इन्फेंट की अगर बात करें ऑल बोन मेरो आरबीसी प्रोडक्शन अकर इन ऑल बोन मेरो चाइल्ड की अगर बात करें बोन मेरो मेरो मोस्ट बोन एक्टिव आरबीसी प्रोडक्शन इन द मेरो ऑफ द मोस्ट बोन्स अडल्ट की अगर बात करें vertebrate sternum ribs आरबीसी प्रोडक्शन लिमिटेड टू एक्सियल स्केटर vertebrate sternum फिर देखो आरबीसी आर द प्रोडक्शन एट डिफरेंट साइट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एंड द site of the RBC production changes with age. Bone marrow become the primary site for the infant. Adequate RBC production is essential for her oxygen transport and survival. फिर आता है hematology and bone marrow. Bone marrow function in adults, production RBC, WBC and platelets. During fetal development, blood cells and more made in liver and spleen. If bone marrow is damaged, blood cells production may occur outside the marrow. Blood cell production, blood cell production by age. Blood cell production occur in all bone marrow cavity by age. Active, active marrow limited to upper humerus and femur, other long bone become inactive. Changes in red bone marrow sensitivity with vertebral sternal with femur. फिर देखिए 100% equal degree of cellularity of bone. Bone marrow is large and inactive organ similar to size and function. 75% of myeloid cell production, white blood cells. 25% RBC reflecting the shorter lifespan of WBC. फिर देखो hemoglobin most abundant protein in the RBC study. Hemoglobin is oxygen carrying pigment in the RBC consists of four subunits, two alpha and two sub to beta cherry in adult hemoglobin SBA hemoiety. A subunit included a hemoiety containing iron for oxygen binding. SBA to a minor form contains lambda chains instead of beta lambda 2 gamma 2 4 subunits. A molecule of hemoglobin is showing the four subunits. Blue disc that represent a heme SBA1 SBA1AC hemoglobin. A1AC is the glycated form of SBA where glucose appears to O-beta chain, clinical marker for diabetes management. At oxygen binding, oxygen bind to iron in heme, forming oxyhemoglobin. Oxygen affinity is influenced by pH, temperature, and 2,3 bpg concentration. 2,3 bpg increase drug affinity, decrease the oxygen level decreases. फिर देखो NS3 की अगर बात करें बीटा चैन अल्फा चैन हीम आयरन फिर देखो रेड सेल फ्रेजिलिटी hemolysis की अगर बात करें RBC live hypotonic solution releasing hemoglobin into plasma. Hereditary spherocytosis genetic disorder increasing cell fragility due to defective membrane protein spectrin mechanism. देखो नॉर्मल आरबीसी इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख देंगे ना तो ये वाटर को क्या करेगी स्वेल करेगी और हिमोलाइसिस हो जाएगा हिमोग्लोबिन रिलीज रहेगा Because 6-PD deficiency, the enzyme deficiency increase RBC susceptibility of drug and infection leading to hemolysis. देखो glucose 6 phosphate also support NADPS production to cell stability and bacterial killing
in granulocyte with deficiency predi- predisposing to severe infection. Glucose is also support NDS production for cell stability and bacterial killing in granulocyte with deficiency. Keep responding. देखो drugs infection increase RBC susceptibility, impact bacterial killing in granulocyte, predisposed to severe infection. And nutrient required for RBC production. Iron is essential for hemoglobin synthesis and oxygen binding. Iron help in the formation of hemoglobin, which carries oxygen in RBC. Deficiency can cause microcytic anemia. Excess iron can cause hematocrosis. देखो विटामिन B12 cobalamin is required for the recycling of folic acid. It supports DNA synthesis and RBC maturation. Deficiency can lead to megoblastic anemia and condition known as the pernicious anemia. Iron, folic acid, vitamin B12 and vitamin B6 are essential nutrients for the formation of maturation and proper function of RBC. Deficiency of any these can lead to different type of anemia. फिर देखो folic acid B9. Folic acid is involved in purine and thymine nucleotide synthesis. It is a crucial for cell division, particularly in rapidly dividing erythrocytes. Deficiency can cause megaloblastic anemia. Vitamin B6 pyridoxal is required for hemoglobin synthesis during RBC maturation. It plays a key role in amino acid metabolism and heme synthesis. Deficiency can lead to pneumocytic anemia. फिर देखो fetal hemoglobin key point structure. The SBF and has a gamma chain instead of beta chain alpha 2 gamma 2 suited for fetal life. Oxygen affinity SBF binds less strongly to 2,3 BPG, so it has a higher affinity ऑक्सीजन एसबीएफ 2,3 के साथ में बहुत तेजी से बाइंड कर जाता है जिसकी वजह से इसकी O2 के साथ एफिनिटी ज्यादा है ट्रांजिशन टू अडल्ट हीमोग्लोबिन एसबीएफ इज यूजुअली रिप्लेस्ड बाय एसबीए सून आफ्टर बर्थ सम परसिस्ट इनटू adulthood एसबीएफ जन्म के बाद कितने कन्वर्ट हो जाता है एसबीएफ 8 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक हेमेटोपोइसिस अर्ली इन डेवलपमेंट गोवर alpha 2 zeta 2 gover 2 alpha 2 zeta 2 are present before switching to SBF गोवर अल्फा 2 जीटा 2 गोवर 2 एसबीएफ फिर आ जाता है रेगुलेशन लो ऑक्सीजन हाइपोक्सिया इंक्रीज जीपीओ एंड अफेक्ट ग्लोबिन जीन एक्सप्रेशन प्रमोटिंग एसबीएफ प्रोडक्शन लो O2 हाइपोक्सिया ईपीओ ग्लोबिन जीन एक्सप्रेशन एसबीएफ कहते हैं सेल हीमी सिंथेसिस की पॉइंट हीम सिंथेसिस की पॉइंट occurs in all cells of body doesn't occur in mature RBC not mitochondria doesn't occur in a mature RBC or no mitochondria. 85% in liver and erythroid tissue. स्टार्टिंग मटेरियल जो है सक्सिनल कोएंजाइम ए और लाइसिन है कंपार्टमेंट की अगर बात करें बोथ माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में स्टार्ट कहाँ पे होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है ठीक है B6 आर सिंथेसिस रिक्वायर विटामिन B6 pyridoxal phosphate as a cofactor it is represented by heme देखो सक्सिनल कोएंजाइम ए जो है एला सिंथेसिस RLE बॉन्ड डेल्टा अमीनो लिवोनुलिक एसिड के अंदर डेल्टा अमीनो लिवोनुलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है पीबीजी सिंथेस और एल्डिहाइड it is prophytinogen FBG 5 stage protoporphyrin third ferrochelatase Fe plus 2 heme product inhibition फिर देखो एजिंग आरबीसी जो है इसका लाइफ स्पान कितना होता है 1 to 120 दिन होता है एज आरबीसी शो फॉस्फेटाइल सेरीन और इट्स सरफेस एडमी सिग्नल स्प्लीन एंड लीवर साइट फॉर आरबीसी is removal spleen and liver site for RBC removal site for phagocytosis macrophages is spleen and liver remove and enable as RBC फिर देखो क्या होता है हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन
जो किसमें हो जाता है ग्लोबिन में, हीम में और बिलिरुबिन के अंदर। किसमें कन्वर्ट होता है ग्लोबिन में, हीम में और बिलिरुबिन के अंदर। आयरन रिसाइक्लिंग की अगर बात करें, आयरन ट्रांसपोर्ट बेस टू बोन मैरो, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है? बोन मैरो के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फिर देखो इरिथ्रोसाइट डिस्ट्रक्शन लाइफ स्पान जो है 120 डेज है। कितना है इसका? 120 डेज। ब्रेक डाउन साइट जो है स्क्रीन और लिवर के अंदर है। CO फॉर्मेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस फ्रक्शनिंग एज अ सेलुलर मैसेंजर। हीम RBC मैक्रोफेजेस, हीम ऑक्सीजनेज। फिर ये आयरन NADPS प्लस NADP बिलीवर्डिन के अंदर कन्वर्ट होता है। बिलीवर्डिन रिडक्टेज के अंदर क्या होता है? NADPS और S प्लस आयन NADP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये बिलीरुबिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बिलीरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स है। क्या है? बिलीरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स है। फिर देखिए इथ्रोसाइट डिस्ट्रक्शन लाइफ इज 120 डेज, ब्रेकडाउन साइट स्क्रीन और लीवर। फिर बाद के अंदर क्या होता है इसके अंदर? सबसे पहले ये बिलीवर्डिन के अंदर, बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन के अंदर, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग हीम ब्रेकडाउन बाय हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम फंक्शन एज अ सेलुलर मैसेंजर्स। फोटोथेरेपी एक्शन। फिर देखिए ये फोटोथेरेपी तो नहीं, ब्लर आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है। तो देखो बिलीरुबिन जो है, बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन डाइग्लो डाइग्लोक्लोराइड एक्सक्रीटेड इनटू बाइट इंटेस्टाइन सिग्नेचर यूरो। फिर देखो यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिन येलो पिगमेंट और स्ट्रिकोबिलिन ब्राउन पिगमेंट डिस्क्रिप्टर एक्सेस ऑटो ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट इन अदर एनिमल्स। जैसे कि अर्थवर्म है, मोलस्क है, लीच है, एनालिड है, इकाइनोडर्म है, यूरोपोडेटा है, मोलस्का है, बाइवोल्व्स है। अर्थवर्म, मोलस्क, लीच, एनालिड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पिगमेंट एनिमल, जैसे कि अर्थवर्म में मोलस्का है, लीच है, एनालिड है, इकाइनोडर्मेट है, यूरोपोडेटा है, मोलस्का है। फिर देखो नेम ऑफ पिगमेंट की अगर बात करें, कलर ऑक्सीडाइज मेटल। हीमोग्लोबिन जो है रेड कलर का है और ये इसके पास में मेटल होता है। एग्जांपल है कोडेट वर्टिब्रेट। अर्थवर्म है, नेरीज है, रिनोकोला, क्लोरोनोस वर्टिब्री, एनिमल, एनालिड। अर्थवर्म, नेरीज, रिनिकोला, इंसेक्ट लार्वी, सिनोनोमास, हिमोसाइनिन, ब्लू, कॉपर, मोलस्क एंड आर्थ्रोपोडा के अंदर है। मोलस्क है, स्नेल है, ऑक्टोपस है, आर्थ्रोपोड्स, क्रस्टेशियन, अरेकिनिलिड्स। इथ्रोक्रोनिन रेड कलर का है, आयरन मेटल है लीच के अंदर और लीचेस के अंदर। हिमोइरेथ्रिन रेड आयरन है, लीड है। सिपोक्लोरोक्लोइडी लिंगुलेटा एनालिड इस सिपुनोक्लोइडी लिंगुलेटा। क्लोरोक्विन ग्रीन कलर का है, आयरन है इसके पास में। एनालिड सेबेला, सेपुलिट्स, पोलिकेट वर्म्स, सेबेला, सर्पुलिट्स। देखो इकाइनोक्रोम रेड है, आयरन, इकाइनोडर्मेटा, कैनोडर्म शियाचिन स्टारफिश। वेनेडियम ग्रीन कलर का है, यूरोकोडेटा, सी स्क्वाड्स। पिनोग्लोबिन ब्राउन कलर का है और एमन है इसके पास में मेटल। पिन्ना और किस में फाउंड फाउंड होता है? जैसे कि मोलस्क है, बाइवोल पिन्ना। देखो मोलिडीन ब्राउन ब्राउन है। होलोथी होलोथूरिया, इकोनोडर्म सी कुकुम्बर। फिर देखो सबसे पहले देखो क्या होता है जब आरबीसी जो है डैमेज्ड, वेसल्स इंजरी डैमेज टू द वेसल वॉल्ट कॉजेज इंजरी। जैसे कि ये ओजवा। फिर वेसल स्पाज्म जो मतलब कंस्ट्रक्शन होने लग गया है। थ्रोम्बेक्सिनेट टू सेरोटोनिन। वेसल स्पाज्म वेसल्स कंटेन टू रिड्यूस ब्लड लॉसेस। प्लेटलेट जो है अडियर हो जाती है। फिर बाद के अंदर प्लेटलेट अडियर टू इंजरी साइट एंड एग्रीगेट टू फॉर्म प्लग।
फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ insoluble fibrin, esters एंड कोगुलेशंस। फिर क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ insoluble fibrin, esters और कोगुलेशन। फर्स्ट है फाइब्रिनोजन, सेकंड जो है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ है कैल्शियम, फिफ्थ है प्रोअसिलिन लेबाइल फैक्टर एसिलेटर ग्लोबिन, सेवंथ है प्रोकन्वर्टिन एसपीसीए स्टेबल फैक्टर, एट जो है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए एचएफ, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन एएचजी। फिर आ जाता है 9 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक कंपोनेंट पीटीसी, इस्मस फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। और 10 हो जाता है सेचुरेट पावर फैक्टर। 11 होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट पीटीए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी आ जाता है। 14 है एग्माइन फैक्टर ग्लास फैक्टर। 30 आ जाता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर लोकिलोरेंट फैक्टर। HMW के हाई मोलिकुलर वेट किनोजन फिजल्ड फैक्टर। PKA प्रेकालिक्रिन फ्लेचर फैक्टर। KA है कैलिकरिन पीएल प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड। सबसे पहले 12 हो जाता है, 11 में, 9 हो जाता है, 10 में, फिर थ्रोम्बिन, फिर फाइब्रिन बन जाता है। देखो थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन सिंथेसाइज कहाँ से होता है, लिवर से होता है। फाइब्रिन और फाइब्रिन और फैक्टर 13A एक्टिवेटर स्टेबल क्लोट, क्या होता है स्टेबल क्लोट। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन सिंथेसाइज बाय लिवर फाइब्रिन, term 13A activated stable clot. Factor 13A act as a cross linker which links fibrin strands together forming a strong stable fibrin clot. फाइब्रिन स्ट्रैंड की अगर बात करें, फाइब्रिन आ जाता है क्रॉस लिंकर फैक्टर 13A स्टेबल क्लॉट। देखो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन की अगर बात करें, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, रेड एंड व्हाइट ब्लड red and white blood cells are trapped in the mass। फिर बाद के अंदर कोगुलेशन इनहिबिटर एंड अदर केमिकल आर रिलीज्ड। क्या होता है कोगुलेशन इनहिबिटर एंड अदर केमिकल्स आर रिलीज्ड होने लग जाते हैं। नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स रिलीज एंटीकोगुलेंट एजेंट। जो नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स होती है वो क्या रिलीज करती है, एंटी क्लोटिंग एजेंट टू इंश्योर दैट क्लोट रिमेन लोकलाइज्ड डज नॉट स्प्रेड। इसे कहता है जो क्लोट है एक जगह रहे वो स्प्रेड ना हो। इधर फाइब्रिनोजन एक्टिविटी, प्लाज्मिन जो है प्लाज्मिन लाइज इन फाइब्रिनोजन प्रोडक्शन प्रोड्यूस एफडीपीएस दैट इनहिबिट थ्रोम्बिन फॉर्म फ्रॉम प्लाज्मिनोजन इनएक्टिव। फिर आता है सेकंड होता है एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मिनोजन, cleaves plasminogen to plasmin RGN 560 560 and we have 561. UPA can also activate plasminogen. 3 knockout in mouse, knockout of TPA or UPA slows plot lysis. Double knockout extensive fibrin deposition. Endothelial cells. Thrombomodulin thrombin activated CAPC 14C 14 5 जो है इनएक्टिव या इनएक्टिवेटेड इनहिबिटर ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटेड टीपीए प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन थ्रोम्बिन टीपीए यूपीए लाइसिन फाइब्रिन कंडीशन लीडिंग टू एक्सेस ब्लीडिंग। देखो विटामिन के डेफिशिएंसी कॉज मैकेनिज्म इम्पेयर सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर सेकंड 7th 9th 10th प्रोटीन सी एसेंशियल फॉर गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ विटामिन रेजिड्यू विटामिन के जो है क्या होता है रिड्यूस क्लोटिंग इंक्रीज ब्लीडिंग रिस्क हीमोफिलिया एक्सिस डिसऑर्डर deficiency of factor 18 8 और 19 primarily affect males lead to excessive bleeding होने लग जाती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया लो प्लेटलेट काउंट हो जाते हैं इसके अंदर, लो प्लेटलेट काउंट और causes a small hemorrhage porphyria on the skin। These conditions impair different components of the hemostatic
some clotting factor platelet and of their activation leading to reduced protein availability and increased bleeding risk. देखो ब्लड ग्रुप जो है ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम इज अ वाइटल फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनटीए एंटीबी एंटीबॉडी आईजीएम आर प्रोडक्शन अर्ली इन द लाइफ ड्यू टू exposure to environmental antigen एबीओ locus I locus had a terminal antigen located on chromosome number 9 consists of 7 exons कितने exons से मिला के बनाए 7 exons से मिलके बनाए 3 allele A allele encode is galenic not transferase galactose antigen है B जो है galactose transferase B antigen O allele है no enzymatic activity deletion in exon 6 H antigen remain unchanged fructose है N-acetyl galactosamine है और ग्लूकोज रहता है ए एंटीजन क्या क्या आता है नेचुरल ग्लूकोसामाइन ग्लूकोसामाइन बी एंटीजन ग्लूकोसामाइन रहता है देखो कॉन्सेप्ट डोनर जो है ब्लड ग्रुप ए जो है एंटीजन एंटी बी एंटीबॉडी रिप्रेजेंट हो जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेसिपिएंट जो है ब्लड ग्रुप बी एंटी बी एंटीजन एंटी ए एंटीबॉडी होती है इसके पास में डजंट एंटीबॉडी कैन नॉट एग्रीगेट रेसिपिएंट आरबीसी donor antibody cannot aggregate RB recipient RBC because of lower titer of NTB antibody entering recipient body. What happens? A donor RBC aggregate in recipient in a body due to antibody. Conclusion: the donor RBC aggregate in recipient body due to antibody recipient. फिर देखो अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट हार्ट आ जाता है देखो हार्ट जो है इसके पास में क्या होता है देखो ये जो होता है ना वो होता है हमारा राइट एट्रियम है और ये वाला है पल्मोनरी वॉल्व है और ये जो है वो आ जाता है हमारा ट्राइस्फिड वॉल्व और ये आ जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल आ जाता है और ये जो है वो आ जाती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी आ जाती है और ये जो है पल्मोनरी वेन आ जाती है और ये जो है ये आ जाता है हमारा लेफ्ट एट्रियम और ये आ जाता है हमारा बाइकास्पिड वॉल्व मिट्रल वॉल्व जिसको बोलते हैं और ये लेफ्ट रोटर ये है हमारा एरोटिक वॉल्व देखो हार्ट चेम्बर की अगर बात करें राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट एट्रियम जो है वो क्या करता है डीऑक्सीजनेटेड राइट वेंट्रिकल जो है पंप टू पल्मोनरी आर्टरीज इसको क्या करता है पंप कर देता है लेफ्ट एट्रियम जो है रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम जो है वो क्या करता है ऑक्सीजनेटेड और इसको पंप कर देता है अरोटा की तरफ हार्ट वॉल्व की अगर बात करें एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो है वो क्या करते हैं प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो or to ventricles to aorta वेक फ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल टू aorta वेक फ्लो को वो रोकता है कान से कान जाए वेंट्रिकल से aorta में नहीं जाए सेमिलुलर वॉल्व जो है प्रिवेंट बैक फ्लो फ्रॉम आर्टरीज टू वेंट्रिकल सेमिलुलर वॉल्व जो है प्रिवेंट करता है बैक फ्लो फ्रॉम आर्टरीज टू वेंट्रिकल आर्टरीज कब नहीं जाए वेंट्रिकल में जाए वॉल्व साउंड लब डग क्लोजिंग वॉल्व प्रोड्यूस द लब जब वॉल्व क्लोज हो जाते हैं ना तो वो क्या करते हैं लब डग साउंड प्रोड्यूस करते हैं इसको हम क्या करते हैं हार्ट साउंड जो है कहते हैं फिर देखो कार्डियक मसल प्रॉपर्टीज गैप जंक्शन allows rapid spread of electrical signal between cardiac muscle cells from coordinator contraction desmosome की अगर बात करें intercalated disc with desmosomes prevent tearing during contraction and relaxation pacemaker cell की अगर बात करें specialized cell that spontaneous generate electrical impulse to initiate heart contraction pacemaker cell जो है specialized cell होती है that spontaneously generate electrical impulse to initiate heart contractions देखो कार्डियक साइकिल की अगर बात करें rhythmic contraction and relaxation of cardiac cycle होता है कार्डियक rhythmic contraction and relaxation of cardiac muscles होता है rhythmic contraction and relaxation of cardiac muscles ब्लड जो है कहाँ पे जाता है एट्रियम के अंदर जाता है 70% ब्लड जो है पैसिवली जो है फ्लो करता है और 30% जो है एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन 1 सेकेंड वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टमेटिक सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल लंग्स कॉन्ट्रैक्शन जो है 3 सेकेंड का होता है देखो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल जो कितनी होती है 0.8 सेकेंड होती है कॉन्ट्रैक्शन
का मतलब होता है सिस्टोल। एट्रियम सिस्टोल करता है। एट्रियम सिस्टोल 0.1 सेकंड। डायस्टोल की अगर बात करें एट्रियम का 1 सेकंड। तो ये होता है एटम। एट्रियम रिलैक्सेशन की अगर बात करें, है ना, सॉरी, रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो वो करता है डायस्टोल करता है। वेंट्रिकल सिस्टोल जो है वो कितना होता है? 0.3 सेकंड का होता है। वेंट्रिकल डायस्टोल कितना होता है? 0.5 सेकंड का होता है। तो ये भी कितना होता है? 8 सेकंड का हो जाता है। ठीक है, फिर देखो सबसे पहले क्या होता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एट्रियल सिस्टम इन वो isovolumetric contraction semilunar wall is still closed and heavy wall get closed। मतलब जो सेमिलुनर वॉल जो है वो बंद होते हैं और हेवी वॉल जो है वो भी बंद हो जाता है। लब साउंड कंज्यूम होता है। देखो वेंट्रिकुलर इजेक्शन वेंट्रिकुलर सिस्टोल सेकंड फेज सेमिलुनर वॉल ग्रेटर देन 80 mm Hg। देखो isovolumetric इजेक्शन वेंट्रिकुलर diastole ventricular pressure seminal wall get closed। डब साउंड आता है लेस देन 80 mm Hg। वेंट्रिकुलर फिलिंग वेंट्रिकुलर डायस्टल 0 mm Hg हेवी वॉल ओपन वेंट्रिकुलर फिलिंग स्टार्टेड। देखो कार्डियक साइकिल की अगर बात करें, वेंट्रिकुलर फिलिंग जो है ब्लड फ्लोज फ्रॉम अरोटा टू वेंट्रिकल। ब्लड फ्लो कहाँ करते हैं? अरोटा से वेंट्रिकल में जाते हैं, है ना, वेंट्रिकुलर करना है। अरोटा से कहाँ से? आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है बट वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। प्रेशर इंक्रीज होता है, हेवी वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाते हैं और लब का साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। फिर देखो वेंट्रिकुलर इजेक्शन की अगर बात करें, ब्लड इज पंप आउट ऑफ वेंट्रिकुलर ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ वेंट्रिकल प्रेशर इज एट 120 mm। प्रेशर कितना भी होता है? 120 mm तक हो जाता है। आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन की अगर बात करें, चौथा वेंट्रिकल रिलैक्स बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं लेकिन जो वॉल्यूम है वो कौन सा देना? प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो सेमिलुनर वॉल क्लोज डब हो जाता है। फिर द कार्डियक साइकिल की अगर बात करें, है ना, तो सबसे होता है वेंट्रिकुलर फिलिंग। इसके अंदर कहता है ब्लड फ्लोज फ्रॉम आरोटा टू वेंट्रिकल। आरोटा से वेंट्रिकल के अंदर जाता है। फिर देखो आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है? वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो हेवी वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाता है। और वेंट्रिकुलर इजेक्शन की अगर बात करें तो वो क्या होता है? सेमिलुनर वॉल जो है वो ओपन हो जाता है, ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम वेंट्रिकल्स। और जो ब्लड है वो क्या हो जाता है? इजेक्टेड फ्रॉम वेंट्रिकल्स। ब्लड इजेक्ट हो जाता है वेंट्रिकल से। आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन की अगर बात करें, वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है, ऑल वॉल्व्स क्लोज्ड ब्रीफली। ऑल सारे के सारे वॉल जो है वो क्लोज हो जाते हैं। फिर देखिए सबसे पहले देखो ये यहाँ पे जो है हमारा एड्रियल प्रेशर एवी वॉल जो है क्लोज रहता है और ये है सिमिलर वॉल। ऑरोटिक प्रेशर यहाँ पे पड़ता है। ऑरोटिक प्रेशर किया जाता है, सेमुलर वॉल जो है क्लोज होता है, डायफ्रागमेटिक नोज। देखो ऑरोटिक प्रेशर शोज द प्रेशर इन द aorta rise when blood is ejected from the left ventricle। The dichrotic notch indicates semilunar wall closure। Ventricular flexion low during filling, highly sharply during ventricular contraction, systole and pause during relaxation and diastole। Atrial pressure जो है remain low with this whole fluctuation due to atrial contraction and filling valve event। every valve close start of systole semilunar valve में अपन आते हैं ejection semilunar valve close dichrotic notch every valve opens। Here the electrical activity of the heart। The heart is electrically active. It is controlled by specialized cells that are generate and conduct electrical signal and enabling coordinated contraction। ऐसे नोड जो सिनोट्रियल नोड located in the right atrium and natural pacemaker of the heart generate electrical impulse 60 to 100 times। AV node atrioventricular node located near AV wall receive impulse from a AV atrioventricular node located near AV wall receive impulse from SA node delay impulse 0.1 second to allows ventricle
Bundle of is conduct bundle of is conduct impulse bundle of is जो है conduct करता है impulse AV bundle of is conduct impulse from the AV node ventricle throughout the interior ventricular septum. Bundle of branches right and left carry impulse says to the right and left ventricle. Purkinje fibers distributed impulses throughout ventricle muscles ensure polymetric contraction from apex to archivoid. S node AV node bundle of his bundle of SAV bundle of his bundle of branches Purkinje fiber electrical path of the heart. फिर देखिए ऐसे नोड पेस मेकर मसल सेटरी मसल्स की देखो इंटरकेलेटेड डिस्क डेस्मोसोम्स सार्कोमियर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन गैप जंक्शन चैनल इलेक्ट्रिकल करंट हार्ट ब्लॉक ऐसे नोड ब्लॉक्स हो जाती है माइल्ड एज एवी नोड मेंटेन हार्ट रेट ग्रेटर 40 से 60 बीपीएम एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक एवी ब्लॉक स्लो एट्रियल टू वेंट्रिकल सिग्नल reducing ventricular rhythm 20 bpm infrahesion block severe blocks conduction below AV node causing very low heart rate 20 bpm or less. फिर देखो ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल एंड फंक्शन देखो सबसे पहले क्या होता है फेज फॉर स्पॉन्टेनियस डिप्रेशन ड्रामा फनी करंट चैनल कंटिन्यू अंटिल थर्सोल्ट -42 -30 मिलीवोल्ट एपी ऑफ कैल्शियम डिपोलराइजेशन एल टाइप कैल्शियम फिर आ जाता है outflux of potassium repolarization threshold T type calcium channel फिर देखो फेज 0 जो है डिपोलराइजेशन ड्यू टू कैल्शियम इनफ्लक्स जनरेटिंग द एक्शन पोटेंशियल जीरो जीरो डिपोलराइजेशन ड्यू टू द कैल्शियम इनफ्लक्स जनरेटिंग द एक्शन पोटेंशियल फेज 3 जो है रिपोलराइजेशन हो जाता है कैल्शियम इनफ्लक्स रिटर्न मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू 160 मिलीवाट रीस्टार्टिंग द साइकिल फिर देखो इंटरनल करंट इन ऐसे नोड्स LCN funny channels open at -60 millimeter allowing sodium influx initiating phase activated by hyperpolarization balancing potassium efflux and sodium influxes. More negative potential increases if promoting depolarization. More negative potential increasing promoting depolarization pacemaker ability and camp and regulation. जो है SCN control regulator slow depolarization toward action potential threshold. और हाई कैंप जो है मोर एशियन चैनल्स ओपन फास्टर डिपोलराइजेशन लो कैंप फास्टर एशियन रीओपन स्लोइंग डिपोलराइजेशन एंड हार्ट रेट फिर देखिए टी टाइप कैल्शियम चैनल ओपन एट -50 मिलीवोल्ट कोजिंग ट्रांजिएंट कैल्शियम इनफ्लक्स फॉर इनिशियल डिपोलराइजेशन एल टाइप कैल्शियम चैनल ओपन एट -40 millivolt providing sustained calcium influx to reach threshold. Potassium channel essential for hyperpolarization, reduce potassium conductance in phase 4, support pacemaker potential, modulation of pacemaker activity, further stimulation acetylcholine, increase potassium influx, hyperpolarization cells slowing the pacemaker rate, sympathetic stimulation, enhance SCNT type and L type calcium channel activity, increasing the heart rate. Other factors affecting heart rate, hormone, epinephrine, norepinephrine, and thyroid hormone increases the heart rate. Epinephrine, norepinephrine, and thyroid hormone heart rate increase over time. फिर बात क्या रहता है आयनिक लेवल कैल्शियम पोटेशियम एंड सोडियम जो है कैल्शियम है पोटेशियम है सोडियम है ये भी क्या करते हैं हार्ट रेट को होता है बॉडी टेम्परेचर हाई टेम्परेचर उसकी वजह से भी हार्ट रेट बढ़ जाती है ऑक्सीजन लेवल जो है हाइपोक्सिया कंडीशन होती है तो हार्ट रेट कम हो जाती है पीएच बैलेंस प्रोड्यूस कैन आल्सो अफेक्ट द हार्ट रेट देखो ऑटोनोमस रेगुलेशन पैरासिम्पेटिक वेगस नर्व इनहिबिट पेसमेकर डिक्रीजेस द हार्ट रेट
एसिटिल रिलीज से हार्ट रेट डिक्रीज रहता है। ड्रग्स इंक्रीज द हार्ट रेट। पेरासिम्प है तो लेटिक्स एट्रोपाइन ग्लाइको और पायरोडेट सेकोपोलामाइन hypertropogamy sympathetic increases the pacemaker activity via calcium and funny channels epinephrine norepinephrine जो है इनके जो होता है तो हार्ट रेट बढ़ जाती है ड्रग्स डिक्रीजेस हार्ट रेट इनके एथेनोलाइटिक्स बोलते हैं इनको बीटा ब्लॉकर्स है मेटाबोलाइट कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स वेट्रोपेनल डिटाइजेशन अभी भी बरोबर है चैनल इनहिबिटर इफेक्ट ऑन पेसमेकर पोटेंशियल increases रिपेयरिंग आता है नॉर्मल पैरासिम्पथेटिक ज्यादा पैरासिम्पथेटिक वेगस ऑक्सीजन कोनिन जो है और सिंपैथेटिक इपिनेफ्रिन पैरासिम्पथेटिक में जो है शरीर को हार्ट रेट को कम कर देता है सिंपैथेटिक के अंदर क्या होता है इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन आता है तो उसकी वजह से क्या होता है हार्ट रेट बढ़ जाता है इसी कोनिन जो है नॉरएपिनेफ्रिन रिपिनेफ्रिन फिर देखो अल्फा वन जीवन अल्फा वन adreno receptor glands which subtype does not receptor G protein secondary जेल का जो एक्टिवेट डे कैल्शियम लेवल इंक्रीजेस वेसो कंट्रैक्शन करवाता है अल्फा 2 केमिकल में इनहिबिट द नॉन इक्विलिब्रियम रीजन सीनियस सिक्रेशन अतः बीटा 1 जो है केमिकल इंक्रीज कराता है हार्ट रेट इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी कार्डियक आउटपुट बीटा 2 जो है केमिकल इंक्रीज करवाता है ब्रोंको को डायलेशन वेसोडाइलेशन बीटा 3 जीएस कैंप इंक्रीज करवा देता है लिपोलाइसिस से डिफॉल्ट अल्फा 2 इज द आउटलाइनर अल्फा 2 is the only lister adrenocorticoreceptor that decreases the couplers to all the beta receptor. फिर देखें ये देख लिया था हमने बीटा 1 कैप का इंक्रीज कर देता है हार्ट रेट इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिव कार्डियक आउटपुट बीटा 2 जो होता है कैप का इंक्रीज करता है ब्रोंकोडाइलेशन और वेसोडाइलेशन बीटा 3 जीएस कैप इंक्रीज लिपोलाइसिस से डिफॉल्ट अल्फा 2 is the alpha Alpha 2 is the only listed adrenal decreases the camp couples to line. All beta receptors increases the camp via GS. So one does not act the through the camp at all GQIP3 DEG. IP3 inositol triphosphate DEG diacyl glycoside of the brain और GI inhibitory G प्रोटीन है और GS stimulatory G प्रोटीन GP activator phospholipase C increases via IP3 DEG. Arterial pressure blood pressure arterial pressure or blood pressure is centrally located as the systolic or diastolic that is 120 or 120 by 80 mmHg systolic pressure जो है वो कितना होता है 120 होता है प्रेशर ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है उसको कहते हैं डायस्टोलिक जो है वो क्या होता है प्रेशर जो मतलब 80 हो जाता है रिलैक्सेशन के दौरान जो होता है ना उसको कहते हैं ये देखो pulse pressure can be measured with the between difference between systolic pressure and diastolic pressure 120 minus 80 mmg 40 mmg pulse pressure systolic minus diastolic 120 minus 40 सी तो होता है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है सिस्टोलिक प्रेशर 120 डायस्टोलिक 80 और पल्स प्रेशर कितना हो जाता है 40 से कम हो जाता है कि कोई की टेक ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेड एट सिस्टोलिक डायस्टोल एकदम मतलब 120 बाई 80 mm सिस्टोलिक कितना होता है 120 mmHg डायस्टोलिक होता है 80 mmHg नॉर्मल एग्जांपल pulse pressure is the difference between systolic and diastolic 40 mmHg फिर देखो री रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट The volume of blood pumped per minute by ventricle is called cardiac output, typically expressed in liter per minute. फॉर्मूला है कार्डियक आउटपुट बराबर हो जाता है HR इंटू SV हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय वन वेंट्रिकल और वन बीट वॉल्यूम पम्प्ड
into aorta per ventricle stroke. देखो SV is normally measured using an electrocardiogram to record EDV and ESV and calculating the differences. SV की अगर बात करें and diastolic volume, EDV माइनस ESV and systolic pressure की पॉइंट की और cardiac output बराबर होता है HR into SV. Cardiac output depend on the heart rate and stroke volume. यूनिट ऑफ कार्डियक आउटपुट जो है लीटर पर मिनट होती है, क्या होती है? लीटर पर मिनट होती है. एसवी कैलकुलेशन एसवी बराबर होता है ईडीवी माइनस ईएसवी. फिर देखो रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड पर मिनट बाय द वेंट्रिकल. सी बराबर होता है एच आर इंटू एसवी. एसवी बराबर हो जाता है हमारा ईडीवी माइनस ईएसवी. सीओ बराबर हो जाता है बेहतर बीट पर मिनट इंटू 0.7 एल बाई बीट पॉइंट 50.0. फिर देखो एक्सरसाइज intravenous increases contraction increases blood retention. Venous return. Primary controller of cardiac output is the rate of blood flow back to the heart from the veins. Key role. Venous return. Ventricular filling. Cardiography. As cardiac output increases rapidly till 10 years, then decline gradually after 8 years. Cardiac output worsens age. The nervous excitement. Sympathetic stimulation and parasympathetic inhibition increases the pumping efficiency by 2 ways. Heart rate increases more per minute. तथा contraction stronger contraction रिजल्ट होता है H सेवन और HR into SV. हार्ट रेट स्ट्रोक वॉल्यूम. हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज कार्डियक आउटपुट. देखो cardiac output is mainly influenced by venous return as a nervous regulation. It can be increased and heart rate and contractive formulas UH double S into V. Extra factoring heart rate. Autonomic invention hormones है fitness levels है एज है. देखो फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम. हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है स्ट्रोक वॉल्यूम को. फिटनेस लेवल इंक्रीज कर देता है स्ट्रोक वॉल्यूम को. और जेंडर जो है मेल के अंदर ज्यादा होता है स्ट्रोक वॉल्यूम. कॉन्ट्रैक्टिविटी जो है उससे भी स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होता है. ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर देता है स्ट्रोक वॉल्यूम को. पीरियड ईडीवी. ईडीवी भी इंक्रीज कर देता है किसको? स्ट्रोक वॉल्यूम को. आफ्टर लोड रेजिस्टेंस. आफ्टर लोड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस कर देता है स्ट्रोक वॉल्यूम को. फिर देखो ये क्या होता है? हार्ट रेट आ जाता है इससे. ऑटोमेटिक इंटरवेंशन हार्मोन फिटनेस लेवल है एज स्ट्रोक वॉल्यूम बराबर करता है ईडीवी माइनस एसवी. कार्डियक आउटपुट बराबर कर जाता है एचआर इनटू एसवी. ईडीवी होता है एंड डायस्टोलिक प्रोसेस और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. ईएसवी होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. मीन आर्टेरियल प्रेशर में इज द एवरेज आर्टेरियल प्रेशर ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल. और होता है कार्डियक डायस्टोलिक डीपी 1/3 पल्स ऑफ प्रेशर एसपी माइनस डीपी. एमईपी बराबर होता है डीपी प्लस 1/3 एसपी माइनस डीपी. एग्जाम्पल होता है सिस्टोलिक प्रेशर बराबर होता है 120 mmHg. डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mmHg. कैलकुलेशन होता है एमएपी 80 प्लस 1/3 120 माइनस 80. एमएपी बराबर होता है 93 mmHg. टेक में रिप्रेजेंट द ड्राइविंग प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लो टू ऑर्गन. में रिप्रेजेंट द ड्राइविंग प्रेशर और ब्लड फ्लो टू ऑर्गन्स. देखो blood receptor regulate blood pressure via blood receptor and the aortic arc and the carotid sinus response to increase the pressure increase blood receptor filling leading to vasodilation and bradycardia. Response to decrease pressure reduce blood vessel filling causing vasoconstriction and increase heart rate. फिर देखो cardiac sinus a high pressure blood receptor located at the bifurcation of the common carotid vein. Afferent fiber, carotid sinus nerve healing, the cranial nerve branch of SN9, glossopharyngeal ganglion cell body in retrosal ganglion central target, project to antiacin medulla. बेरोज सब देखो ये होता है हमारा कैरोटिड साइनस नर्व. फिर यहाँ पे आ जाती है हमारी ब्रांच ऑफ सीनस 9 ग्लोसोफेरिंजियस. फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा रेट्रोसल गैंग्लियन सेल बॉडीज. कहता है प्रोजेक्ट टू एंटियासिन मेडुला.
Carotid sinus. A barorexia signaling pathway flow chart. Carotid sinus high pressure barorexia in the wheel of convention. Carotid sinus. Hearing's nerve. Affect fibers. Branch carotid sinus. Xenon glossopharyngeal signal carried by the petrosal ganglion cell body is in the petrosal ganglion MPS in medulla. They detect the changes in blood pressure and send to signal to the medulla MTS to help maintain stable blood pressures. Aortic arc baroreceptor, high pressure baroreceptor located in the wall of the aortic arc. Afferent fiber, aortic depression nerve, cranial nerve, branches of CM. Now, vagus ganglion cell body in nose. Aortic arc baroreceptor, high pressure baroreceptor located in the wall of the aortic arc. Aortic afferent fiber, aortic depression nerve, cranial nerve, branches of CM. Vagus ganglion cell body in node. Nodos, ganglion central target project to NTS. Ita baroreceptor is one of arc, aortic depressor bronchial of CL9 and nodos, ganglion NTS in neural nucleus tectus. फिर आता है central target project to NTS in medulla. Aortic arc baroreceptor signaling pathway of low chart aortic arc baroreceptor high pressure aortic arc depressor. फिर आता है sign vagus. Medullus NTS. It detect the blood pressure sent to the medulla NTS to help maintain. ये देखो baroreceptor carotid sinus internal aortic sinus baroreceptor represses short term regulation of blood pressure within seconds. Baroreceptor are pressure sensor located in the blood vessel aortic arc and carotid sinus that help maintain blood pressure at nearly constant level by initiating reflex changes in the heart rate and blood vessels. ये देखो increases in blood pressure stress of baroreceptor increase of baroreceptor afferent signal to medulla, increase activation of NTS, increases activation of CBLM, and inhibition of RVLM. The synthetic regulatory activity increases, sympathetic activity decreases. Effect on heart rate, bradycardial contraction decrease, stroke volume decrease, cardiac output decreases, peripheral blood vessels, peripheral blood flow, peripheral resistance, blood pressure decreases. Make heart normal. Spiritual decrease in blood pressure. Stages of spiritual decrease feeling of receptor. After signal to medulla decreases, reduced activation of NTS, decrease of CVLM, and disinhibition of RVLM, decrease parasympathetic renal activity and sympathetic activity. ये होता है इफेक्ट ऑन हार्ट इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज स्ट्रोक कार्डियोमोटिव effect on blood vessels, vasoconstriction, peripheral blood flow decreases, peripheral resistance increases. Result का blood pressure decreases, basal flow. This is differentiated as a negative feedback mechanism, always opposing the changes in blood pressure to maintain high result blood pressure. Is basal flow. फिर देखो activation of baroreceptor at a different level of atrial pressure. If atrial pressure is less than 40 mmHg, no baroreceptor activity. Above 120 mmHg, all baroreceptor start its activity. Between 40 to 120 mmHg, baroreceptor activity increases with pressure. Baroreceptor versus arterial pressure 40 mmHg, no baroreceptor activity. Activity increases with pressure. DI PPHD maximum greater than 120 mmHg, all baroreceptor start its activity. Key takeaway. Phases silent below 40 mmHg active and engages between 40 to 120 mmHg and fully active above 120 mmHg, ensuring optimal regulation of blood pressure. For chemoreceptor weaknesses, monitor oxygen CO2 and PS levels, left cardiovascular and respiratory responses activity. Response increases in CO2 and decreases in O2. During exercise, triggering reflex adjustment location near barrow research in aortic and carotid sinus reflex mechanism increase CO2 and as well as
activate cardio accelerator and vasomotor centers, increasing cardiac output and vasoconstriction, inhibit cardio inhibitory centers, decrease CO2 and H+, activates cardio inhibitory centers, reducing cardiac output and causing vasodilation. फिर देखो डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, आर्टरी जो है दूर लेकर के जाती है, वेन्स जो है पास में लेकर आती है, जनरल अपीयरेंस राउंडेड होती है, थिक वॉल होती है आर्टरी जो है, और वेन्स होती है ये लोअर थिन वॉल की होती है। प्रेशर जो होता है ना आर्टरी के ऊपर हाई होता है, वेन के ऊपर लो होता है। वॉल थिकनेस जो होती है ना, आर्टरी मोटी होती है, वेन्स पतली होती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, आर्टरी के अंदर हायर इन सिस्टमेटिक लोअर इन पल्मोनरी, वेन के अंदर लोअर इन सिस्टमेटिक हाई इन पल्मोनरी। वॉल की अगर बात करें इसके अंदर आर्टरी में पंजर नहीं होता है, जबकि वेन्स के अंदर बहुत से ज्यादा पंजर होते हैं। देखो नाइट्रिक ऑक्साइड की अगर बात करें, सिंथेसाइज बाय एनओएस फ्रॉम एलआरएन, मैकेनिज्म की अगर बात करें, एक्टिवेट एसजीएस इन स्मूथ मसल, इंक्रीजिंग सीजीएमपी, रिड्यूसिंग कैल्शियम रिलीज एंड एनहांसिंग कैल्शियम रीअपटेक, कॉजिंग रिलैक्सेशन। प्रोस्टासाइक्लिन की अगर बात करें, पीजीआई2 प्रोड्यूस फ्रॉम आर्किडोनिक एसिड via COX enzymes, inhibit platelet aggregation and induce vasodilation by increasing smooth muscles and platelets. Prostacyclin produced from arachidonic acid via COX enzymes inhibit platelet aggregation and induce vasodilation by increasing cam in smooth muscles and platelets. Endothelium-derived hyperpolarization factor (EDH) of endothelium-derived hyperpolarizing factor. Unidentified substances that hyperpolarize smooth muscle cells increase calcium in endothelial cells, leading to potassium efflux hyperpolarizing smooth muscles and causing relaxation. देखो thromboxane A2 AX2 synthesized from arachidonic acid via COX1. मैकेनिज्म की अगर बात करें, मैकेनिज्म एक्सेस प्रमोट प्लेटलेट aggregates and vasoconstricted bind TP receptor increase calcium in smooth muscle causing contraction. Endothelial 81 potent vasoconstricted है released by endothelial cells stimulated by cytokinin inhibited by NO and prostaglandin I2. यह कार्य करता है बाइंड CTN ETB2 receptor on smooth muscles increasing calcium entry leading to constriction. देखो फंक्शन एंड ईसीजी की अगर बात करें, रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फ्रॉम एक्शन पोटेंशियल इन हार्ट मसल्स cells indicate overall heart electrical activity aiding in the diagnosis of heart condition, identify a alteration in impulse propagation and cardiac function. ECG की अगर बात करें, external limb lead 1 second third bipolar lead comparing voltage difference between electrodes, augmented leads AVL AVF we have a unipolar lead with a sample differentials assessing electrical excess. Cordial leads we are research major voltage at specific chest point for detailed view of heart activity. We represent atrial depolarization contraction of the atrial PR interval from of P from P from start of P to start of QRS. Reflex atrial to ventricle contraction normal 0 12 to 0.20 seconds. PR segment flat line between PVM and QRS with no delay. QRS complex represent ventricular depolarization contraction of the ventricle normal duration 0.06 to 0.10 seconds. ST segment flat line from end of S to the start of T early ventricular repolarization. RR interval time between R waves used for heart and heart rate calculation. T wave represent ventricular repolarization.
QT क्या होती है? फ्रॉम स्टार्ट ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स टू द एंड ऑफ द टी वेव रिफ्लेक्ट दैट टाइम फॉर वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन repolarization normal 0.3 to 0.04 seconds. PO is small positive deflection after T wave thought to represent left ventricle repolarization revival. ECG help in assessing heart rate, rhythm, conduction and timbre. Digital nursing note. फिर आता है रेस्पिरेशन जो कि जाता है, हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे तो इट विल जी हेल्प इन असेसिंग हार्ट रेट, रिदम, कंडक्शन एंड टिम्बर। आगे हम रेस्पिरेशन नेक्स्ट के अंदर देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।